جی آواز آ رہی ہے، آپ لوگ ایک بار کنفرم کر دیجیے گا۔ وعلیکم السلام شبا۔ آواز اور بورڈ کلیئر ہے، ایک بار کنفرم کر دیجیے گا پلیز۔ اوکے، چلے پھر۔ تو آج ہم لوگ اپنی نئی صنف کو جو ہے وہ ہم لوگ شروع کر چکے ہیں، جس کو ہم نے مرثیہ کہا ہے۔ کل اس کے بارے میں نے آپ کو جو ہے وہ ساری چیزیں بتا دی تھی، اور آپ کو بتایا تھا کہ کل جب ہم لوگ آپ کو اگلی کلاس میں ملیں گے تو بات کریں گے میر انیس کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اور جو سب سے چھوٹی صنف مانی جاتی ہے، سب سے چھوٹی صنف، وہ ہماری کیا ہے؟ مرثیہ ہے، کیونکہ اس میں آپ کو صرف دو ہی چیز پڑھنی ہے، انیس اور ضمیر۔ اور ایگزام میں جتنے بھی سوال آ سکتے ہیں یا جتنے کی بھی پاسبلٹیز ہیں، وہ ہم لوگ کلاس میں جو ہے وہ کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کل میں نے جب آپ کو مرثیے کا آغاز لکھوایا تھا، تو اسی کے حوالے سے مرثیے کے آغاز کے تعلق سے اگر آپ کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ لے سکتے ہیں، اردو کا یا اردو مرثیہ کا ارتقاء۔ یہ کتاب اکثر ایگزام میں پوچھی گئی ہے، اردو مرثیہ کا ارتقاء۔ اس کے مصنف کا نام ہے مسیح الزماں، مسیح الزماں، مسیح الزماں، اردو مرثیہ کا ارتقاء، مسیح الزماں۔ اس کے علاوہ اردو مرثیہ نگاری، اردو مرثیہ نگاری، اردو مرثیہ نگاری، یہ ہے امواب اشرف کی یا امہانی اشرف کی، امہانی اشرف کی۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا اردو مرثیہ، اردو مرثیہ، اور امپورٹنٹ بنا کے لکھ لیجیے گا ڈبل اسٹار، اردو مرثیہ۔ یہ کس کی ہے؟ شارب ردولوی کی، شارب ردولوی کی، شارب ردولوی کی۔ اردو مرثیہ شارب ردولوی کی جو ہے وہ ایک اہم اور مشہور کتاب ہے۔ اس کے بعد ایک اور لکھ لیجیے گا لاسٹ، اردو مرثیہ میر انیس کے بعد، اردو مرثیہ میر انیس کے بعد، اردو مرثیہ میر انیس کے بعد سید طاہر حسین کاظمی کی، سید طاہر حسین کاظمی کی، سید طاہر حسین کاظمی کی۔ تو یہ کچھ تصنیف ہیں جو مرثیے کے آغاز کے تعلق سے یا مرثیے کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں میر انیس کے حوالے سے۔ سب سے پہلا سوال تو ایزی ہی پوچھا جاتا ہے، ان کا اصل نام وہ کیا ہے؟ میر بابر علی، میر بابر علی، ان کا اصل نام ہے۔ اگر بات کریں تخلص کی، تو ان کا تخلص پہلے کیا تھا؟ حضے، تخلص کیا تھا؟ حضے، اور بعد میں انہوں نے اپنا تخلص کیا کر لیا؟ انیس کر لیا۔ اور یہ تخلص ان کے استاد نے ان کو کیا کیا تھا؟ تجویز کیا تھا۔ کس کو کیا تھا؟ تجویز کیا تھا ان کے استاد نے۔ اور ان کے استاد کون تھے؟ ناسخ۔ کس صنف کے تھے؟ غزل کے تھے، کیونکہ میر انیس نے اپنی جو ابتدائی دور میں، یا کہہ سکتے ہیں جب وہ کم عمری میں تھے، محض 13 برس کے تھے، 13 برس کی عمر میں انہوں نے جو ہے وہ غزل کہنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن اپنے والد محترم میر، اپنے والد محترم میر محمد مستحق خلیق، میر محمد مستحق خلیق کے کہنے پر انہوں نے جو ہے وہ غزل کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا، اور مرثیے کی طرف متوجہ ہوئے۔
اور ان کے والد محترم نے کہا تھا خلیق نے کہ بیٹا شاعری کے حوالے سے یا شاعری کے حوالے سے آپ اپنی آخرت کے بارے میں سوچو، آخرت کے بارے میں سوچو کہ تم کل خدا کے پاس جاؤ گے تو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا، غزل کو ترک کر دیا، غزل کو ترک کر کے مرثیے کی طرف کیا ہو گئے، متوجہ ہو گئے، مرثیے کی طرف متوجہ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم میر محمد مستحق خلیق سے جو ہے وہ کیا کی تھی، حاصل کی تھی۔ یہی اس کی کیا تھی، وجہ تھی۔ لیکن ان کا جب شروعات میں رجحان غزل کی طرف تھا تو ان کے والد ان کو کہاں پر لے کے گئے تھے، ناسک کے پاس، اور میر نے اپنی یا میر انیس نے اپنی پہلی غزل کس کو دکھائی تھی، ناسک کو ہی دکھائی تھی، ناسک کو ہی دکھائی تھی، ٹھیک۔ اور انہوں نے عربی کی تعلیم حافظ مولوی یا مولوی لکھ لیجیے گا، مولوی حیدر لکھنوی سے لی تھی، مولوی حیدر لکھنوی سے۔ اور کہاں پر لی تھی، فیض آباد میں، فیض آباد میں۔ کیوں؟ کیونکہ میر انیس کی پیدائش بھی کہاں ہوئی ہے، فیض آباد میں۔ کب ہوئی ہے، 1802 میں، فیض آباد میں کیا ہوئی ہے، ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور وفات ہوئی ہے 1874 1874 لکھنؤ میں۔ میر انیس کی پیدائش 1802 میں اور 1874 میں۔ اس سے پہلے ایک سوال یہ تھا، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ غالب پر سب سے زیادہ کام کس نے کیا ہے، غالب پر سب سے زیادہ کام کس نے کیا ہے؟ بتائیے، غالب پر سب سے زیادہ کام کس نے کیا ہے؟ بالکل، امتیاز علی خان عرشی نے۔ ایگزام میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ میر انیس پر سب سے زیادہ کام کس نے کیا ہے؟ صبا نے صحیح بتایا، میر انیس پر سب سے زیادہ کام کس نے کیا ہے؟ میر انیس پر سب سے زیادہ کام کس نے کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ اگر پتا ہو تو این لکھ دیجیے گا، ادروائز این لکھ دیجیے گا، جس کو پتا ہو وہ لکھ دیجیے گا، جس کو نہیں پتا وہ این لکھ دیجیے گا۔ بہت امپورٹینٹ سوال ہے یہ والا، میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، انہوں نے جو ہے وہ، ویری گڈ، شاباش، پراؤڈ آف یو شابا۔ نام ہے ان کا مسعود حسین رضوی ادیب۔ سب سے زیادہ کام میر انیس پر انہوں نے کیا ہے، مسعود حسن رضوی ادیب، ویری گڈ، جولی فراہمی، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھ لینا اسی سے، میں حالانکہ ان کی کتابیں آپ کو جو ہے وہ ابھی لکھواؤں گا۔ اس کے بعد والد کے بعد ان کے دادا کا نام آتا ہے، سبھی کو پتا ہے کون ہے دادا، میر حسن، جنہوں نے مثنوی لکھی ہے، سحر البیان، سحر البیان۔ اس کے بعد ان کے پردادا کا نام آتا ہے، پردادا آپ کو پتا ہے سبھی کو، میر زاہد۔ اور میر زاہد کی سب سے زیادہ ادبی چشمہ کس سے رہی ہے، میر زاہد کی ادبی چشمہ کس سے رہی ہے؟ سودا سے نہ، ہاں ہاں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شوقین، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، گڈ گڈ، سودا سے ہی رہی ہے، مجھے لگا انیس سے کہہ رہے ہیں آپ۔ ہاں، میر زاہد کی جو ادبی چشمک رہی ہے وہ کس سے رہی ہے، سودا سے رہی، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہے، ہم عصر ہیں۔ اور اسی لیے ایک شعر جو ہے وہ بڑا مشہور ہوتا ہے، آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، آپ لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہوگا، اور وہ کون سا ہے، اس طریقے سے، عمر گزری ہے
उम्र गुजरी है इसी दस्त की, उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में, उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में, पांचवी पांचवी पुश्त है, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, शब्बीर की मद्दाही में। ठीक है, शब्बीर कहते हैं इमाम हुसैन को। ठीक है, और यहां तक तो चार पुश्त हुई है। ठीक, भाई पहले हुए परदादा मीर जाहिद, दूसरी पुश्त हुई मीर हसन की, तीसरी हुई मीर खलीक की, और चौथी हुई किसकी, मीर अनीस की। लेकिन यहाँ बात की गई है पांचवी पुश्त की। तो पांचवी पुश्त कहाँ से आती है? पांचवी पुश्त की शुरुआत होती है 1822 में, जब मीर अनीस की क्या होती है, शादी होती है। 1822 में मीर अनीस की शादी होती है फातिमा बेगम से। किससे? फातिमा बेगम से। हाँ, फातिमा बेगम से। और इनसे जो है वो इनको 5 औलादे होती हैं, जिसमें 3 क्या होते हैं, बेटे होते हैं, और 2 जो है वो बेटी होती है। और ये वाला सवाल 2021 में आया था यूपी टीजीटी में कि मीर अनीस के 3 बेटों का क्या नाम है। हाँ, 19-20 में कर सकते हैं, कहीं कहीं आपको 19 मिल सकता है, कहीं कहीं आपको 20 मिल सकता है। ठीक, बालिग हो गए हैं, 18 साल के तो शादी कर सकते हैं। 3 बेटे का जो है वो उनका नाम पूछा गया था। ठीक है, जिसमें नाम था पहले मीर नफीस का, मीर नफीस, इसके बाद मीर जलीस, मीर जलीस, और इसके बाद मीर सलीस, मीर सलीस। ये 3 नाम जो है वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, नफीस, जलीस और सलीस। इसी के ही हम काफिया होते हैं, इसी के हम काफिया 3 किरदार और हैं या 3 नाम और हैं, नॉवेल में है, उसके भी 3 ही बेटे होते हैं। उन तीनों का ऑर्डर बता सकता है कोई बच्चा? नॉवेल में है वो नफीस, जलीस और सलीस। इसी तरह से हम काफिया हैं, तीनों के तीनों ही, और वो नॉवेल में है, और वो नॉवेल में है। हाँ, नजीर के नॉवेल में है जिसका नाम है तौबतन नसू, उसमें 3 नाम है, वो भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखते हैं किसके याद है। अगर किसी को याद है तो गुड है, अगर किसी को याद नहीं है तो वो बता सकता है, मैं उसको बता दूंगा। लेकिन आपको ये चीजें जो है वो याद होनी चाहिए। महमूद अली ने एन कह दिया है, आपसे तो उम्मीद नहीं थी मुझे महमूद अली, आप तो एक बहुत अच्छे तालिब इल्म है मेरे, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं सर मुझे नहीं पता। आपके ऊपर तो मैं 15 लाख का कर्जा ले लूं। और फरहा, विजारत, शौकीन, सबा। अरे आप पढ़ने में अच्छे हैं ना महमूद अली, अगर आप ये वाला सवाल करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो बतन नसू में आपने सुना नहीं है क्या? कलीम है, सलीम है, और कौन से हैं, एक और नाम है ना, कलीम, सलीम और अजीज। तीसरा नाम यही है ना, कलीम, सलीम, अजीज। हाँ, अलीम है शायद, हाँ, सबा ने सही बताया, अलीम है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबा को आने वाली 15 तारीख को, सॉरी 15 लाख रुपए दिए जाएंगे आने वाली 30 तारीख को। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझसे राब्ता कर लीजिएगा, अपना अकाउंट नंबर और डिटेल भेज दीजिएगा, 30 तारीख जैसे ही आएगी।
آپ کو 15 لاکھ रुपए کا इनाम दे दिया जाएगा। हाँ, कलीम, सलीम और अलीम है। गुड, चलिए फिर। तो ये क्या है, हम काफी हैं, ये तीनों किरदार जो है वो इसी से मिलते जुलते हैं, तो इसलिए मैंने जो है वो आपको बता दिया, याद आ जाता है इस तरीके से। ठीक, चलिए फिर आगे बात करते हैं। मीर अनीस के 3 बेटे थे और 2 बेटियां थी। इनके अलावा लोग कहते हैं कि औलाद के बाद अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो वो अपने जानवरों से करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग जो है वो अपने घर में कुत्ता या बिल्ली जो है वो पालते हैं। ठीक उसी तरह से अनीस भी जो है वो कबूतर और बिल्ली पालने का शौक था। कबूतर और बिल्ली पालने का इनको क्या था, शौक था। और गालिब की तरह इन्हें उम्दा किताब रखने का और पढ़ने का, दोनों का ही शौक था। गालिब की तरह उम्दा किताब और पढ़ने और रखने का बहुत शौक था। और अनीस की मुलाकात गालिब से लखनऊ में हुई। एग्जाम में पूछा जाता है कि अनीस की मुलाकात गालिब से कहाँ पर हुई, तो लखनऊ में हुई। कहाँ पर हुई, लखनऊ में। क्यों, क्योंकि वहां पे ये क्या करने गए थे, मरसिया पढ़ने गए थे, और वहीं पर जो है वो इनकी किससे मुलाकात हुई, गालिब से हुई। और इनको ही यानी कि मीर अनीस को ही दबिस्तान लखनऊ में मरसिए का बानी कहा जाता है। मीर अनीस को ही दबिस्तान लखनऊ में मरसिए का बानी कहा जाता है, क्योंकि ये पैदा तो हुए हैं फैजाबाद में, लेकिन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि दबिस्तान लखनऊ का बानी कौन है मजलिस में, वो मरसिए में, तो कौन है, मीर अनीस। क्योंकि इन्होंने फैजाबाद के बाद जो ज्यादातर मरसिए पढ़े हैं वो कहाँ पढ़े हैं, लखनऊ में ही पढ़े हैं ज्यादातर। लखनऊ के अलावा इन्होंने बनारस में भी पढ़े हैं, बनारस के अलावा इन्होंने हैदराबाद में भी पढ़े हैं। और कहा जाता है कि मरसिए से पहले एक सिन्फ पढ़ी जाती है, जो मैंने आपको कल भी बताई थी, उसे क्या कहते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? हाँ, सबा और शौकीन ने सही बताया, उसे कहते हैं सलाम। तो सलाम की जो इब्तिदा है मरसिए में, वो मीर अनीस ने ही शुरू की है। और कहा जाता है जैसे कसीदे में हम लोग तशबीह पढ़ते हैं, उसी तरह से मरसी से पहले जब हम लोग सलाम पढ़ते हैं, तो सलाम जितना अच्छा होता है उतना ही आपका मरसी अच्छा माना जाता है। अभी आप देखेंगे 2-3 दिन बाद जो है वो शबे बारात है, और शबे बारात पे जो है वो सलाम पेश किया जाता है। खास तौर पे जो बरेलवी मसलक के लोग होते हैं वो इसको ज्यादा क्या करते हैं, फरोग देते हैं, या उसको जो है वो पढ़ते हैं। हालांकि जो अलग अलग फिरके के लोग हैं वो इस पर क्या करते हैं, दरगुजर करते हैं। सलाम जो है वो नबी की शान में पढ़ा जाता है। ठीक है, हाँ, चलिए। इसके बाद एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मीर अनीस हैदराबाद कब गए और कितने का जो है उन्होंने वहां पर सफर किया, या कितनी बार। तो याद रख लेना, 1871 में गए, सिर्फ एक ही बार गए। और कितने लोगों के साथ गए थे, 6 लोगों के साथ गए थे। 6 लोगों के साथ गए थे, जिसमें उनके 2 बेटे भी शामिल थे, जो है वो शामिल थे। और जब ये लखनऊ आए मरसिया पढ़ने या सलाम पढ़ने, तो सबसे पहली जो मजलिस हुई, ठीक, मजलिस कब होती है, मुहर्रम के महीने में होती है। ठीक, तो जो लखनऊ में इनकी जो पहली मजलिस का कयाम शुरू हुआ, वो हुआ इकरामुल्ला खां के इमाम बाड़े में। इकराम उल्ला खां के इमाम बाड़े में। यहाँ पर आके जो है इन्होंने क्या की, अपनी मजलिस को जो है वो शुरू किया इमाम बाड़े में। और यहीं से जो क्या हो गई, इनकी मकबूलियत शुरू हो गई। और
उस जमाने के नवाब अमजद अली शाह, अमजद अली शाह ने इनको क्या है अपने दरबार से वाबस्ता कर लिया। ठीक है, अमजद अली शाह, इन्होंने जो है वो इनको अपने यहाँ पर क्या रख लिया, काम पर रख लिया, और यहीं पर जो है वो अपने आगे की मुस्तकबिल जिंदगी जो है वो कायम की। और लखनऊ में ही 1874 में क्या हुई, वफात पाई। किसने? मीर अनीस ने। मीर अनीस ने। कहा जाता है मीर अनीस के हवाले से कि जब ये फैजाबाद से लखनऊ आए तो अपने उस्ताद कौन थे? नासिक। नासिक की तरह या नासिक के जैसे इनको भी जो है वो थोड़ी सी दिक्कत थी। किसकी? हाजमे की। नासिक को भी दिक्कत थी हाजमे की, अनीस को भी दिक्कत थी, और दबीर को भी दिक्कत थी। इन तीनों को हाजमे की दिक्कत थी, इसीलिए ये लोग क्या खाते थे? कम खाना खाया करते थे। कम खाना। अनीस जो है वो कहते हैं कि दिन में सिर्फ एक ही वक्त का खाना खाया करते थे, क्योंकि इनको क्या दिक्कत थी? हाजमे का दिक्कत था। इनको हाजमे की क्या थी? शिकायत थी। इसीलिए जब भी ये कहीं पर जाते थे तो इस बात का जो है वो खास तौर पर क्या करते थे? ख्याल करते थे। और हैदराबाद में भी जो है इन्होंने इसी तरह से क्या किया? अपने आप को मेंटेन किया, क्योंकि हैदराबाद जो है वो काफी दूर था, बहुत दूर था। इसके बाद फैजाबाद हो गया, बनारस हो गया। इसके अलावा इन्होंने अजीमाबाद, अजीमाबाद और अजीमाबाद का दूसरा नाम ही है पटना। अजीमाबाद का दूसरा नाम ही है पटना। कोई बच्चा बता सकता है आप पटना का अजीमाबाद नाम किसने रखा था? पटना का अजीमाबाद नाम किसने रखा था? या अजीमाबाद का पुराना नाम या असल नाम या पहला नाम क्या है? जीएस वाले पोर्शन में आ सकता है आप लोगों से। बिल्कुल, मोहम्मद शौकीन ने सही बताया है। अजीमाबाद का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। जो किसने बसाया था? उदायीन ने बसाया था। कब? मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य में। और अजीमाबाद नाम रखा इसका शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने इसका नाम पाटलिपुत्र का नाम करके क्या रखा? अजीमाबाद रखा। फिर जब हम लोग आजाद हुए तब इसका नाम पड़ गया पटना। ठीक, और तब से हम लोग कहते हैं पटना। अब ये बताओ कौन पटना जाके पटना चाहता है? एक मीम जो है वो इसी तरह से क्या है? मशहूर भी। इसके बाद मीर की या मीर अनीस की अदबी चश्मक किससे रही? एक ही इंसान से रही, और वह है दबीर। मीर अनीस की अदबी चश्मक किससे रही? दबीर से। और इसका जिक्र हमें कहाँ मिलता है? शिबली नोमानी की तसनीफ में। शिबली नोमानी की तसनीफ में, जिससे उर्दू अदब में एक नई तनकीद की इब्तिदा होती है। उर्दू अदब में नई तनकीद की इब्तिदा होती है, जिसे हम लोग कहते हैं तकाबुली तनकीद। तकाबुली तनकीद। तकाबुली तनकीद से मुराद होता है कंपैरिजन। क्या होता है? कंपैरिजन या तुलना, जिसे हम लोग उर्दू में भी कहते हैं तशबीह। क्या कहते हैं? तशबीह। और इस तसनीफ का या तकाबुली तनकीद का जो शुरुआत होती है, जैसे उर्दू अदब में तनकीद की इब्तिदा किस तसनीफ से मानी गई है? सिर्फ तनकीद की। तकाबुली की नहीं बात कर रहा हूँ, तनकीद की बात कर रहा हूँ। उर्दू में तनकीद की इब्तिदा किससे मानी गई है?
اردو میں تنقید کی ابتدا کس تصنیف سے مانی گئی ہے؟ بالکل، جوری فرا اور وزارت خان نے صحیح جواب دیا ہے، مقدمہ شعر و شاعری سے مانی جاتی ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری سے مانی جاتی ہے، ایئر ہے 1893۔ لیکن اردو ادب میں تقابلی تنقید کی بنیاد، تقابلی تنقید کی بنیاد موازان انیس و دبیر سے مانی جاتی ہے۔ موازان انیس و دبیر سے مانی جاتی ہے، جو کب شائع ہوئی؟ 1907 میں، 1907 میں جو ہے وہ شائع ہوئی۔ اور اس کے مصنف کون ہے؟ علامہ شبلی نعمانی، علامہ شبلی نعمانی۔ اور اسی تنقید سے ہمارے اردو ادب میں موازان یا بنیاد کو تقابلی تنقید کی ابتدا ہوئی، یعنی کہ دو لوگوں میں کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے کمپیریزن کرنے کے لیے یا تلنا کرنے کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ کمپیریزن کرنے کے لیے یا تلنا کرنے کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں پتا، کوئی بات نہیں۔ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے دونوں کا ایک جیسا ہونا، دونوں کا ایک جیسا ہونا، یعنی کہ دونوں میں سمان خصوصیت یا سمان وشیشتائیں جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ بالکل، سبا نے صحیح بتایا، ویری گڈ۔ دو لوگ سملر ہونے چاہیے، تبھی ہم لوگ کمپیریزن کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں کر سکتے۔ مان کے چلیے آپ لوگ ڈی ٹریپل ایس بی کی تیاری کر رہے ہیں اور کچھ بچے آر پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں، تو بالکل آپ میں کمپیریزن نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کا نصاب الگ ہے اور آپ کا نصاب الگ ہے۔ اگر کمپیریزن کرنا بھی ہوگا تو ڈی ٹریپل ایس بی کا ڈی ٹریپل ایس بی میں اور آر پی ایس سی کا آر پی ایس سی میں، ٹھیک ہے؟ تو کمپیریزن کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہونا ہے ایک جیسا ہونا، ٹھیک ہے؟ ایک جیسا ہونا۔ اور اسی لیے ان کی ادبی چشمک رہی ہے کس سے؟ دبیر سے، انیس کی۔ اس کے علاوہ میر انیس اپنے استاد ناسک کو، اپنے استاد ناسک کو کیا کہتے تھے؟ جگت استاد کہتے تھے، جگت استاد۔ ایک ہے جگت استاد اور ایک ہے جگت گرو، ایک ہے جگت استاد اور ایک ہے جگت گرو۔ کیا یہ دونوں ایک ہیں؟ جگت استاد اور جگت گرو دونوں ایک ہیں؟ جگت استاد ہے ہمارے ناسک، تو پھر جگت گرو کون ہے؟ جگت گرو کون ہے؟ بالکل، شاباش۔ وہ کون ہے؟ ابراہیم عادل ساسانی ہے، ابراہیم عادل سا، ابراہیم عادل شاہ ثانی۔ یہ کون ہے؟ جگت گرو ہیں، یاد رکھ لینا، بیجا پور کے ہیں۔ آپ کو جو ہے وہ ایگزام کے حوالے سے ضرور یہاں سے سوال کنفیوز کر سکتا ہے کہ جگت گرو کون ہے؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی، اور جگت استاد کون ہے؟ ناسک۔ جیسے آپ سے کہتے ہیں، ایک کہتے ہیں پہلوان شاعر، وہ الگ ہے، اور ایک کون ہے؟ سخن پہلوان، دونوں الگ الگ ہیں۔ پہلوان شاعر الگ ہے اور سخن پہلوان الگ ہے۔ پہلوان شاعر کون ہے؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ میں نے پڑھا دی ہے آپ کو ویسے تو۔
दोनों ही पढ़ा दिए हैं। पहलवान शायर, बिल्कुल जाहिर सी बात है, नासिक है। हाँ, क्या है? पहलवान शायर हमारे नासिक है। और पहलवान सुखन कह लें या सुखन पहलवान कह लें, मतलब पीछे कर सकते हैं। पहलवान सुखन जाओ ज्यादा अच्छा रहता है। और वो कौन है हमारे? सौदा है। तो इसमें भी जो है वो आपको क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है। तो इसे आप लोग जो है वो क्या करें, सही तरीके से याद कर लो। बस एक याद कर लें कि भाई नासिक को जो है वर्जिश करने का शौक था, तो जाहिर सी बात है वो क्या है, पहलवान हो गए। क्या हो गए? पहलवान। चलिए फिर इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं मीर अनीस के हवाले से ही। तो इनकी जितनी भी चीजें थी वो जो है मैंने आपको एग्जाम के हवाले से बता दी। हालांकि इन्होंने जो है वो मरसी जो है वो अलग अलग जाके जो है वो पढ़े, और अलग अलग जाके जो है वो इन्होंने क्या किया, मकबूलियत हासिल की। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन आज़ाद से मोहम्मद हुसैन आज़ाद से इनकी मुलाकात हुई 1857 के आसपास या 1850 के 8 के बाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद से अनीस की मुलाकात हुई 1858 में। और ये कहाँ पर थे? उस वक्त सफ़र में थे। उस वक्त सफ़र में थे। कहाँ के सफ़र में थे? तो याद रख लेना, अजीमाबाद के सफ़र में थे। अजीमाबाद के सफ़र में थे। और ये जो है वो एक मरसिए में चहलुम पढ़ने जा रहे थे। मरसिए का एक और वो होता है, प्रोग्राम होता है या एक मजलिस होती है जिसे हम लोग कहते हैं चहलुम। कोई बता सकता है मरसिए में जो चहलुम पढ़ा जाता है वो कितने दिन के बाद पढ़ा जाता है? चहलुम मरसिए में या मजलिसों में कितने दिन के बाद पढ़ा जाता है? बिल्कुल, वेरी गुड। कहाँ पर? 40 दिन के बाद जो है वो पढ़ा जाता है। तो अजीमाबाद में ही चहलुम पढ़ने जा रहे थे या मजलिस में जा रहे थे, तब जाके जो है उनकी मुलाकात हुई थी मोहम्मद हुसैन आज़ाद से। और किसके यहाँ जा रहे थे? तो लिख लीजिएगा, सैयद कासिम सैयद कासिम अली खां। ये नवाब थे वहाँ के, अजीमाबाद के। तो सैयद कासिम अली खां के घर पे जा रहे थे मजलिस पढ़ने। और बुलाया किसने था? इनके बेटे ने बुलाया था, जिनका नाम था सैयद अहमद हुसैन। सैयद अहमद हुसैन, यानी कि इनकी फरमाइश पर ही कासिम ने मीर अनीस को बुलाया था चहल्लुम में मरसे पढ़ने के लिए। मरसे पढ़ने के लिए, ठीक। और यहीं पर जो है वो इनकी मुलाकात हुई थी, किससे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद से, ठीक। इसके बाद इनकी कुछ इकवाल लिख लेते हैं इनके मुतालिक, जो कौल कहे गए हैं मीर अनीस के हवाले से, ठीक है। जैसे सबसे जो कौल है, जो सबसे मशहूर है, वो है आतिश लखनवी का। किसका? आतिश लखनवी का जो कौल है वो सबसे क्या है, मशहूर है और मकबूल भी है अनीस के हवाले से। और वो कौन सा है? आप सभी को पता भी होगा कि मीर खलीक का लौंडा आफतें ढा रहा है। मीर अनीस का लौंडा आफतें ढा रहा है। मीर खलीक का लौंडा आफतें ढा रहा है। आफतें ढा रहा है, ये किसका कौल है? आतिश लखनवी का है। आतिश लखनवी का है। इसके बाद अल्ताफ हुसैन हाली का लिख लीजिएगा। अल्ताफ हुसैन हाली का लिख लीजिएगा। इन्होंने भी बताया अनीस के अनीस के हर लफ्ज अनीस के हर लफ्ज और हर मुहावरे अनीस के हर लफ्ज और हर मुहावरे के आगे अनीस के हर लफ्ज और मुहावरे के आगे सबको सर सबको सर झुकाना पड़ता है। सबको सर झुकाना पड़ता है, ये किसका कौल है?
अल्ताफ हुसैन हाली का कॉल है, ठीक है, अल्ताफ हुसैन हाली का कॉल। इसके अलावा मीर अनीस का खुद का एक कॉल है, मीर अनीस का खुद का एक कॉल है, अपने मुताल्लिक है, और कॉल कह सकते हैं या उसे आप लोग दुआ कह सकते हैं, कॉल कह सकते हैं या दुआ कह सकते हैं। जो इन्होंने मरसिया की तरफ मुतवज्जा हुए थे, तब क्या कहा था इन्होंने, खुदा से जो है वो दुआ मांगी थी। और दुआ क्या मांगी थी, दुआ ये मांगी थी कि खून बरसता, खून बरसता नजर आए, खून बरसता नजर आए, जो दिखाऊं, जो दिखाऊं, खून बरसता नजर आए, जो दिखाऊं सफ़े जंग, सफ़े जंग, खून बरसता नजर आए, जो दिखाऊं, जो दिखाऊं सफ़े जंग। सफ़े जंग से मुराद होता है वाक़या करबला से। और कहा जाता है ऐसा, माहिरीन ने इनके बारे में लिखा है कि मरसिया निगारी में, मरसिया निगारी में अगर किसी ने सबसे ज्यादा काम किसी चीज पर किया है, वो है मंजर निगारी, मंजर निगारी। और मंजर निगारी में जो सबसे अहम नाम आता है वो आता है हमारा मीर अनीस का। इसीलिए मीर अनीस में और दबीर में अगर कोई एक चीज है जो मीर अनीस को मीर दबीर से 20 दिखाती है, 20 मतलब एक स्टेप आगे दिखाती है, तो उसका मतलब ही क्या है, मंजर निगारी है। मंजर निगारी से मुराद होता है इमेजनरी चीजें। अगर मैं आपसे कहूं जलेबी, ठीक है, जलेबी, या सुबह सुबह का वक्त है तो आप आलू के पराठे भी ले सकते हैं, कचौड़ी भी ले सकते हैं, या जो आपको अच्छी लगे, जैसे बिरयानी सबको पसंद है, तो आपके मन में एकदम से जलेबी की या बिरयानी की जो है वो तस्वीर बन गई होगी। या गोलगप्पे ले लो, सबके फेवरेट होते हैं। कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो चीज आपको बयान की जाए या जिसका जिक्र आपके सामने किया जाए, वो चीज आपके सामने एकदम मंजर में आ जाती है, तो लगता है कि ये चीज जो है वो क्या होगी, कामयाब हुई। और इसीलिए मरसी में जो सबसे अहम चीज मानी जाती है वो मंजर निगारी मानी जाती है। जब आप कोई कलाम पढ़ते हैं तो वो जैसी पूरी की पूरी फिल्म या पूरा का पूरा मंजर जो है वो आपके सामने क्या हो जाता है, खिंच जाता है। और जब खिंच जाता है तो आपको क्या लगता है, उसको सुनने में, उसको पढ़ने में मजा आता है। इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, आप कोई फिल्म या कोई ऑडियो सुन लीजिए, ठीक है, सिर्फ सुनना है, लेकिन कोई फिल्म या कोई ऑडियो आपको वीडियो में दिखाए, तो आपको जाहिर सी बात है वीडियो वाली चीज जो है वो ज्यादा क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, इफेक्ट करेगी हमेशा से। तो जो चीज आपको दिखाई जाती है और उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको बहुत दिन तक या बहुत देर तक याद रहता है। इसका एक एग्जाम्पल है, इसका एक उदाहरण है, आप लोगों को पता होगा टीचिंग एप्टीट्यूड में, जिसको हम लोग कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन। ये एक विधि होती है पढ़ाने की जिसे हम लोग कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। इसी का एक सेकंड पार्ट होता है डिमॉन्स्ट्रेशन का, जिसे हम लोग अपनी जबान में कहते हैं पिकनिक टूर या हिस्ट्री कल्चर या हिस्ट्री टूर। ये इसीलिए लेके जाया जाता है स्कूल में ताकि आप लोग सही चीजों को क्या कर सके, एनालाइज कर सके। डिमॉन्स्ट्रेशन आपने सुना होगा कि जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, मान के चलिए आप कोई लिपस्टिक लेने जा रहे हैं, आई लाइनर लेने जा रहे हैं, मस्कारा लेने जा रहे हैं, ठीक है, कोई लहंगा लेने जा रहे हैं। लड़कियां ही ज्यादा इन चीजों पे जाती हैं, लड़के तो जो भी पसंद है उठा ले भाई, जरूरत की चीज है, क्या ही देखना। तो उसका कहते हैं भैया थोड़ा सा डेमो दिखाओ हमें, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाते हैं तो डेमो इसीलिए देखते हैं ताकि हम लोग उसका इम्पैक्ट देख सकें। तो इसी हम लोग कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड।
ठीक, वेरी गुड। चलिए फिर, तो इस तरीके से मंजर कशी जो है वो किस में ज्यादा आती है, मीर अनीस पे आती है। और वो इसीलिए नहीं आती कि उनको वो चीज कुदरती तौर पे मिली है, बल्कि उन्होंने खुद खुदा से मांगा है, गैब से मांगा है। और जो चीज गैब से मिलती है उसका कामयाब होना बिल्कुल तय है। तो इसीलिए इन्होंने दुआ की थी कि खून बरसता नजर आए जो दिखाऊं सफेद जम। और इन्होंने जो है वो दिखाया भी है। इनके मरासी में आप लोग जब इनके मरसिए पढ़ते हैं या इनके मरसिए देखते हैं, उसमें जो है वो आपको बहुत आला दर्जे की जो है वो क्या मिलती है, आपको देखने को मिलती है मंजर कशी। जिसमें एक इनका बहुत मशहूर मरसिया है, नमक खानम तकल्लुम है फसाहत मेरी। नमक खान मुतकल्लिम है फसाहत मेरी, फसाहत मेरी। ये जो है वो इनका एक मकबूल और मशहूर मरसिया है। नमक ख्वाना तकल्लुम है फसाहत मेरी। ठीक। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक नाम है सौदा का। सौदा से पहले मरसिया किस हैयत में लिखा जाता था? सौदा से पहले मरसिया किस हैयत में लिखा जाता था? तो आप बताएंगे सर मुरब्बा में लिखा जाता था। लेकिन सौदा ने आके मरसिया की क्या की, सबसे पहले हैयत चेंज की और इन्होंने क्या किया, मुसद्दस। और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मीर अनीस ने सबसे ज्यादा मरसिए किस हैयत में कहे, तो याद रखना मुसद्दस की हैयत में कहे। मुसद्दस की हैयत में उन्होंने सबसे ज्यादा क्या कहे, मरसिए कहे हैं। और अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि नज़म सबसे ज्यादा मुखम्मस में किसने कही है, नज़म सबसे ज्यादा मुखम्मस में किसने कही है? मुखम्मस कहते हैं 5 मिसरों वाली नज़म को, 5 मिसरों वाली नज़म को। बिल्कुल, किसने कही है? नजीर अकबर आबादी ने की है। वेरी गुड सबक। चलिए फिर, तो यहाँ पे क्या हो गया, मुसद्दस में सबसे ज्यादा मरसिए किसने कहे हैं, मीर अनीस ने कहे। तो उनके कुछ हम लोग जो है वो मरसिए लिख लेते हैं ताकि एग्जाम में जो है वो आपसे पूछ लिया जाए। पहले तो ये वाला लिख लीजिएगा, नाम नहीं होता, जैसे कसीदा होता है, गजल होता है, ठीक वैसे ही पहला शेर उसका क्या हो जाता है, इनका मरसिया हो जाता है। चलिए फिर लिख लीजिएगा, आज शब्बीर ये क्या आलम तन्हाई है। आज शब्बीर, आज शब्बीर ये क्या आलम तन्हाई है, तन्हाई है। आज शब्बीर ये क्या आलम तन्हाई है, ये भी क्या है, मरसिया है। इसके बाद लिख लीजिएगा, दस्ते दगा में नूर खुदा का ज़हूर है। दस्ते वफा है, सॉरी, दस्ते वफा में नूर खुदा का ज़हूर है, खुदा का ज़हूर है। दस्ते वफा में नूर खुदा का ज़हूर है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, जब रन में सर बुलंद का अली का अलम हुआ। जब रन में, जब रन में सर बुलंद, जब रन में सर बुलंद अली का, अली का अलम हुआ। आप लोग जानते हैं अलम किसे कहते हैं? जब रन में सर बुलंद अली का अलम हुआ। अलम जानते हैं आप लोग? कोई बच्चा बता सकता है अलम कहते किसे हैं? हाँ, सादमा ने सही बताया, अलम कहते हैं जब मुहर्रम के महीने में ताजिया निकलते हैं। मुहर्रम के महीने में जब ताजिया निकलते हैं, तो ताजिए निकलने से पहले एक बहुत ऊंचा डंडा या बहुत एक ऊंचा झंडा होता है, जिसपे क्या लिखा हुआ होता है, किसी ने देखा है?
جس پہ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ یا حسین، یا علی، یا عباس، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اور اس نکلنے کی جو وہ علامت ہوتی ہے، وہ نکلتا کیوں ہے؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے وہ نکلتا کیوں ہے؟ جیسے آپ لوگ ریڈ لائٹ پہ جاتے ہیں، ریڈ لائٹ پہ تین چیزیں آپ کو دکھتی ہیں، گرین، ریڈ اور یلو. تو ریڈ ہوتا ہے رکنے کا، گرین ہوتا ہے چلنے کا، اور یلو ہوتا ہے سنبھلنے کا، کہ اب آپ تیار رہیے. تو جو وہ علم نکلتا ہے، سب لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک دم تیار ہو جاتے ہیں کہ اب جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ماتم کرنے کے لیے شروعات ہونی ہے. اور جیسے ہی وہ گھوڑا آتا ہے، یا اس کو کچھ اور نام سے جانتے ہیں، اگر کوئی بچہ یہاں پہ ہو تو مجھے اس کا نام نہیں پتا. جب وہ گھوڑا آتا ہے، اس کے اوپر تلوار یا چاقو لگے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا نہیں ہے، بس میں نے سنا ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ وہاں پہ آتے ہیں اور اسے جب گرین سگنل مل جاتا ہے، اور تب سے وہ شروع کرتے ہیں اپنا ماتم. محرم کی 10 تاریخ کو جو ہے وہ ہر سال کیا ہوتا ہے؟ ماتم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابتدائی زمانے میں جب میں 6ٹھی 7ویں کلاس میں تھا، تب میں نے اس کے بارے میں سنا تھا. ہمارے گاؤں کے پاس میں ہی ایک گاؤں ہے جہاں پر شیعہ سمدائے کے زیادہ لوگ رہتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے وہ محرم کا جلوس نکلتا تھا. تو وہاں پہ کافی سنا تھا، زیادہ نہیں تھا، 3 سے 4 کلومیٹر دور پہ ہی وہ گاؤں تھا. ٹھیک ہے. جب آپ کا سلیکشن ہو جائے گا تو آپ مٹھائی لے کے وہیں آئیے گا، میں آپ کو ایڈریس بتا دوں گا. چلیے پھر اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا. بخارا، فارس، میدان، تہور، تہور. بخارا، فارس، بخارا، فارس، میدان، بخارا، فارس، میدان، تہور تھا، ہور. موسٹ امپورٹنٹ ہے، دھیان رکھنا. ہور، ہور نہیں ہے، سوری، ہر ہے. پوچھا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی، ہر کے حوالے سے بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب زلف کھولے ہوئے لیلائے شب آئی. جب زلف، جب زلف کھولے، جب زلف کو کھولے ہوئے لیلائے شب آئی. شب آئی. مٹھائی کے نام پہ کسی نے بھی نہیں کہا سر ہم آئیں گے، سارے کے سارے کنجوس ہیں. جب زلف کو کھولے ہوئے لیلائے شب آئی، یہ بھی کیا ہے؟ ان کا ایک مرثیہ ہے. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا. آمد، آمد، ہر میں شالی دربار میں ہے. آمد، آمد، ہر میں شاہ دربار میں ہے. دربار میں ہے. آمد، آمد، ہر میں شاہ دربار میں ہے. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا. آواز تو آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ شمناز، محمود علی، فرحہ، آواز پہنچ پا رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اوکے. چلیے اس کے بعد ایک اور مرثیہ لکھ لیجیے گا. جب قطع لی مسافت شب آفتاب نے. جب قطع لی، ٹھیک ہے، جب قطع لی، جب قطع لی مسافت شب آفتاب نے. جب قطع لی مسافت شب آفتاب نے. ٹھیک ہے. جب قطع لی مسافت شب آفتاب نے. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا اور لاسٹ لکھ لیجیے گا. فرچند پیمبر کا مدینہ سے سفر ہے. فرچند پیمبر سے یا پیمبر کا مدینے کا سفر ہے.
फरचंद पैगंबर का मदीने का सफर है, ये भी क्या है, इनका मरसिया है मीर अनीस का। ठीक है, मीर अनीस का। तो ये कुछ इनके ताल्लुक से क्या लिखवाए गए, मैंने आपको मरसी लिखवाए। हालांकि इनके मरसिए की एक पूरी पीडीएफ और भी है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ इनके यही है, ये एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है इसलिए। हाँ, ये सारे के सारे अनीस के हैं। इनकी एक पीडीएफ के अनीस के कौन कौन से मरसी हैं, तकरीबन 30 के आसपास मरसियों की एक पीडीएफ है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप लोग जो है उसे वहां से इस्तिफादा हासिल करके उसको जो है वो नजर सानी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये सारे अनीस के ही हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद इनकी कुछ किताबें हैं जो इनके ऊपर लिखी गई है। जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा काम किसने किया है, सबसे ज्यादा काम किसने किया, तो आपने जवाब दिया था सर सैयद मसऊद हसन रिजवी अदीब ने। सैयद मसऊद हसन रिजवी अदीब ने सबसे ज्यादा काम किया। और इनकी एक किताब है जो क्या है, रूह अनीस। रूह अनीस ये क्या है, ये सवाने हैं किसकी, अनीस की। मसूद हुसैन रिजवी अदीब की जितनी किताबें लिखी गई हैं अनीस के ऊपर, उसमें जो सबसे अहम है वो यही है, रूह अनीस। और ये क्या है, सवाने हैं। इसके अलावा मसूद हसन रिजवी अदीब की एक और किताब जो अनीस के ऊपर लिखी गई है वो है ऐसियात, अलिफ या सीन या और ता, ऐसियात। ये भी अनीस के हवाले से लिखी गई तसनीफ है और इसके मुसन्निफ भी यही हैं, सैयद मसूद हसन रिजवी अदीब। ठीक है, इसके बाद अनीस पर और किताबें लिखी गई हैं, जैसे अनीस, कंफ्यूज मत होना, अनीस अलग है और रूह अनीस अलग है। ये है नैयर मसूद की। ठीक, ये नैयर मसूद की है और ये मसूद हसन रिजवी अदीब की है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, और दोनों ही क्या है, सवाने हैं, याद रखना। अनीस नैयर मसूद की है और रूह अनीस मसूद हसन रिजवी अदीब की है, दोनों ही क्या है, सवाने हैं। इसके अलावा नैयर मसूद से एक सवाल पूछा जाता है कि नैयर मसूद को कौन सा अवार्ड मिला, नैयर मसूद को कौन सा अवार्ड से सरफराज किया गया। हाँ, नैयर मसूद ने सिर्फ अनीस लिखी है, सिर्फ और सिर्फ अनीस। ठीक है, जबकि मसूद हसन रिजवी अदीब ने रूह अनीस लिखी है। विजारत खां कह रही है ज्ञानपीठ। चलो मैं इसे थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ, हो सकता है ज्ञानपीठ मिला हो, मेरे जहन में तो अभी नहीं। दूसरा था, जो पहला अवार्ड है वो शमसुर रहमान फारूकी को मिला है और दूसरा नैयर मसूद को मिला है। अभी तक दो ही को मिला है उर्दू अदब में। उर्दू अदब में सिर्फ दो ही लोगों को वो अवार्ड मिला है। पहला शमसुर रहमान फारूकी को है 1996 में। हाँ बिल्कुल, नाजिया सिद्दीकी और सबा ने सही बताया है। सरस्वती सम्मान मिला है। क्या मिला है? सरस्वती सम्मान सबसे पहले 1996 में मिला है। किसको मिला है? शमसुर रहमान फारूकी को मिला है। शमसुर रहमान फारूकी को किसके लिए मिला है, किस तसनीफ के लिए मिला है, कोई बच्चा बता सकता है आप में से? किस तसनीफ के लिए मिला है पहला? जैसे फिराक गोरखपुरी को गुले नगमा के लिए मिला है, शमसुर रहमान फारूकी को किस तसनीफ के लिए मिला है? तो याद रख लेना, मीर के कलाम की शरह, मीर के कलाम की शरह, जिसका नाम क्या है? शेर शोर अंगेज। शेर शोर अंगेज 4 जिल्दों पर है और इसीलिए 1996 में इसको क्या मिला है, आपको सरस्वती सम्मान से नवाजा गया।
दूसरा सरस्वती सम्मान मिला नैयर मसूद को, ठीक है, नैयर मसूद को। चलिए, ये कुछ सवाल थे आप लोगों से एग्जाम में जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मीर अनीस की तकाबुली तनकीद की जो तसनीफ है वो मैं आपको लिखवा चुका हूँ, मवाज़ान अनीस व दबीर, ठीक है, किसकी है? अल्लामा शिबली नोमानी की। इसके बाद एक तसनीफ वो लिख लीजिएगा, मीर अनीस से तारुफ। मीर अनीस से तारुफ यह है सालिहा आबिद हुसैन का, सालिहा आबिद हुसैन। और एक और लिख लीजिएगा फरंगे अनीस, फरंगे अनीस। ये किसकी तसनीफ है? नायब हुसैन नकवी की, नायब हुसैन नकवी की। ये भी अनीस के ऊपर लिखी गई। और लास्ट लिख लीजिएगा अनीस सनासी, अनीस शनासी, अनीस शनासी। ये किसकी है? गोपी चंद नारंग की है, गोपी चंद नारंग, ठीक है, गोपी चंद नारंग अनीस सनासी की तसनीफ है। वेरी गुड, ठीक। तो ये कुछ किताबें थी अनीस के हवाले से, एग्जाम में जो है वो ये आपसे पूछा जा सकता है। दबीर के हवाले से क्या है वो हम लोग जब कल की क्लास में बात करेंगे, तो दबीर के हवाले से कल बात करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को पता भी होगा कि 25 को क्या है, सभी को पता है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा कह रहा है टेस्ट, ठीक है। 25 को वैसे तो देखा जाए संडे है, और संडे में ही क्या है, शबे बारात है। आप लोग उस रात को जाग के जो है वो इबादत करेंगे, तो हो सकता है मंडे में आपकी आंख ना खुले, क्या ना खुले, आंख ना खुले। और हम नहीं चाहते कि हम दुनिया की तालीम में इतना खो जाएं कि दीन की तालीम को भी जो है वो पशे पुस्त डाल दें। तो दोनों ही चीजें क्या करनी है, हमें अपने आप को आगे लेके जानी है। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि जब उससे तुम मांगोगे तो तुम दुआ उस दिन जो है वो कबूल होगी। इसीलिए अपना पूरा फोकस दिन में न, एटलीस्ट रात में तो पूरी तरीके से वही हो। तो मंडे तो आपकी क्लास होगी नहीं, ठीक, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, मंडे आपकी क्लास बिल्कुल नहीं होगी। अब टेस्ट भी होने हैं और आपकी जो है वो क्लास भी होनी है। मरसिया अभी खत्म पूरा नहीं हुआ है, तो मरसिया का टेस्ट जो है वो अभी थोड़ा सा रुक के ले सकते हैं। कसीदा हो चुका है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आपके 2 टेस्ट लेते हैं। कितने? 2। कल आपका होगा कसीदे का, कल आपका होगा कसीदे का टेस्ट, जिसकी टाइमिंग सेम रहेगी, 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक कल होगा, सिर्फ कसीदे कसीदे का, ठीक है, याद रखना, सिर्फ कसीदे और कसीदे का। सर उर्दू का सिलेबस नहीं है मेरे पास, बेटा किसी के पास नहीं है उर्दू का सिलेबस, अभी वो बन रहा है, बन जाएगा, वो मिल जाएगा। इसके बाद संडे में, इसके बाद संडे में हम लोग लेंगे मरसिए का टेस्ट, और उसकी टाइमिंग भी सेम रहेगी, 8 बजे से 8 बजे तक। उसके बाद आप लोग जो है वो अपने दुआ में, अपनी इबादत में जो है वो मशगूल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर संडे का दिन है, तो आप लोग घर पे ही रहेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब भी करते हैं, और हो सकता है उस दिन तो आपको ऑफ मिले ही। तो हम लोग एक दिन ना रख करके, क्योंकि मैंने कहा था कि कसीदे का और मरसिए का एक साथ ले लेंगे, लेकिन वो मुझे लगता है कि कसीदे का अलग रख लेते हैं और मरसिए का अलग रख लेते हैं। कोई बच्चा नहीं जुड़ा हो तो वो याद रख लेना, टेस्ट ऑप्शन में जाके आपको टेस्ट देना होता है, पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक। इसके बाद बस आप लोगों के लिए लास्ट रिमाइंडर है, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी, कि संडे से पहले पहले आप जो है वो अपनी फीस जो है वो जरूर अदा कर दीजिएगा।
अदरवाइज वी विल नॉट कंटिन्यू योर क्लासेस। संडे से कबल कबल या संडे से पहले पहले। कितनी करनी है वो मैंने आपको पहले ही बता दी। आज की क्लास इतनी ही है। आप लोगों से मुलाकात होगी अब मेरी कल दबीर के हवाले से, जब हम लोग बात करेंगे।